everyone, welcome back to the channel. In today's video, we are going to understand the state legislature of India in a simple and detailed way. It will include Vidhan Sabha, Vidhan Parishad, its powers, functions, constitutional articles, and important exam concepts. So stay tuned till the end because this topic is extremely important for various all competitive exams. So starting with the video, first of all, I would like to again inform you that when we come to that what is the structure of our government, we say that it's federal, but there are certain unitary features also. So due to this, the name of our India as quasi federal was said by K.C. Vere. He was the person who named India as quasi federal, and the reason was that we are having many federal features, but it includes certain unitary features also. Like federal structures involves dual government, and we are having two tiers of government, that is union, and in the hierarchy below union there are different states. Not going into local governance, just to understand major two governments, that is union and states. Here there are dual governments, but still we have kept our union stronger, and when the union government is stronger, state government is subject to it. That means we are giving certain powers to the state government also, we are giving certain powers to the states, but we have kept our union stronger. So when stronger means when there will be a clash or conflict, union will prevail. So this stronger union is a part of unitary feature. So we cannot say that India is completely federal, but we can say that it is like federal only. तो एक तरह से सेम है, फेडरल के साथ थोड़ा सा यूनिटरी फीचर्स डाल दो, क्वासी फेडरल फेडरल जैसे ही है, सम वॉट सिमिलर टू फेडरल बट नॉट कम्प्लीटली फेडरल, क्योंकि कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं, जैसे यूनियन गवर्नमेंट इज स्ट्रॉन्गर. बट इफ़ यूनियन गवर्नमेंट इज स्ट्रॉन्गर, दैट डजेंट मीन्स कि स्टेट का कोई रोल नहीं है. स्टेट हैज़ मैनी रोल्स, स्टेट हैज़ एक तरह से इट प्लेज अ मेजर रोल इन रनिंग द गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल. अब इंडिया इज़ अ काइंड ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तो डैट डजेंट मीन्स कि इट्स ओनली द पार्ट ऑफ यूनियन. वहाँ पे स्टेट्स का भी बहुत बड़ा पार्ट आता है, एक मेजर रोल है, एंड दैट रोल इज़ एन इसेंशियल पिलर जिससे हम इंडिया की जो ये फेडरल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है इसको हम प्रूव करते हैं, राइट. So now, starting with the videos, we will focus on the constitutional foundation of this state legislature. So coming on to the part 6 of Indian Constitution, Article 168 to 212 talks about that these are the organization, composition, what is the duration, who are the officers, procedure क्या है, privileges क्या है of the state legislature. But when we come to that state legislature होता क्या है? State legislature means, see, I told you there are three branches: legislative, executive and judiciary. So when it comes to कि इनके अपने अपने functions, we have already discussed in the previous videos कि legislature का काम है law को बनाने का, executive का काम है उसी law को implement करवाने का, and judiciary means कि जो भी चीज़ें अभी तक हुई है उसका interpretation करने का, कि whether this action was right और रॉन्ग. तो जब जस्टिस के लिए जाना है तो हमें जुडिशरी के पास जाना है. अभी इन द लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था कि पार्लियामेंट क्या है. पार्लियामेंट इज़ द लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन. यूनियन में जो लॉज बनते हैं वो पार्लियामेंट पास करती है. बट व्हेन वी कम टू द स्टेट लेजिस्लेचर इज़ अ सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी जो स्टेट लेवल पे है. जैसे अगर हमारे पास एक एग्जांपल ले लो, दैट अगर 28 स्टेट्स हैं तो हमारे पास 28 लेजिस्लेचर्स प्रेजेंट होंगे. उनका काम क्या होगा? इट इज़ द टाइप ऑफ कि हम अगर हायरार्की में रखें तो यूनियन पार्लियामेंट अगर इंडियन टेरिटरी के लिए लॉज बनाती है तो स्टेट लेजिस्लेचर अपने खुद के स्टेट के लिए लॉ बनाएगा. सो यहाँ पे इट इज़ सेड एज द काउंटर पार्ट ऑफ यूनियन पार्लियामेंट फॉर ईच इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी विद द लेजिस्लेचर. नाउ
फेडरल स्ट्रक्चर है, हमने पावर्स को डिवाइड कर रखा है. यू नो देयर इज अ 7th शेड्यूल. इन दिस 7th शेड्यूल वी आर हैविंग 3 lists: union list, state list and concurrent list. So this on first list, this is called as union list. Only union is allowed to make laws, only parliament can pass laws. Second is state list, where states are allowed to make the laws. पार्लियामेंट को लिस्ट 2 में इंटरफेयर नहीं करना है. वी आर नॉट गोइंग इनटू एक्सेप्शंस, जस्ट द जनरल मीनिंग ऑफ 7th शेड्यूल की सेकंड इज अ स्टेट लिस्ट, उसमें सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर ही लॉ बनाएगा. एंड थर्ड इज कॉन्करेंट, जहाँ पे दोनों पार्लियामेंट भी और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लॉज बना सकते हैं. बट यहाँ पे थर्ड लिस्ट के सब्जेक्ट्स में कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि अगर नेशनल लॉ कुछ और कहता है और स्टेट ने कुछ और लॉ पास कर दिया है, इफ़ देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट है तो वहाँ पे यूनियन वाला प्रिवेल करेगा. सो दैट मीन्स अ काइंड ऑफ एक स्ट्रॉन्गर फीचर है जो हमने यूनियन को दे रखा है. तो कॉन्फ्लिक्ट की जगह पे यूनियन प्रिवेल करेगा. बट अगर वो स्टेट लॉ, इस चीज़ का भी एक एक्सेप्शन होता है, अगर उस स्टेट लॉ को गवर्नर ने प्रेसिडेंट के लिए रिज़र्व कर रखा था, प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए रिज़र्व कर रखा था और प्रेसिडेंट ने उस चीज़ को एसेंट दे दी है, तब एक एक्सेप्शन होता है कि सिर्फ उस स्टेट के लिए वो लॉ चल जाएगा, इवन इफ दैट इज़ इन कॉन्फ्लिक्ट विद नेशनल लॉ. बट इट्स नॉट कम्प्लीटली कि हर बार ये चीज़ें हो जाएंगी. रिज़र्व वही बिल्स रखने हैं विच आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द नेशनल लॉ, या वो कुछ पैरेलल नहीं जा रहे हैं, दे आर अ काइंड ऑफ डेविएटिंग फ्रॉम द डायरेक्शन जो नेशनल लॉ हमें कहता है. सो डिपेंड्स ऑन प्रेसिडेंट कि अब वो पास कर रहे हैं या नहीं कर रहे, एसेंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे. बट इट्स नॉट शॉर्टकट टू एवरी लॉ कि आप हर लॉ स्टेट एक तरह का शॉर्टकट निकाले कि हम चलो प्रेसिडेंट के लिए रख लेते हैं और उसको पास करवा लेते हैं. ऐसे बहुत सारे केसेस आए, बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए, तो वहाँ पे दिस वॉज चेक्ड दैट वेदर दिस इज़ द शॉर्टकट रूट टेकन फॉर पासिंग द लॉज जो यूनियन के कॉन्फ्लिक्ट में हो. इसीलिए ये जो कॉन्करेंट लिस्ट वाला जो चीज़ है, डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी, इट इज़ ऑलवेज पुट टू चेक दैट वेदर द लॉ इज़ इन कॉन्फ्लिक्ट और नॉट. और कॉन्फ्लिक्ट में है दैट मीन्स यूनियन लॉ प्रिवेल करेगा, नॉट द स्टेट लॉ. तो अ काइंड ऑफ एक हमने प्रिविलेज दे रखा है टू यूनियन पार्लियामेंट. अब आते हैं इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स पे. 168 से ये स्टार्ट होता है, 212 पे इट एंड्स. स्टार्टिंग विद आर्टिकल 168 टॉक्स अबाउट कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा स्टेट लेजिस्लेचर का. तो स्टेट लेजिस्लेचर में देयर इज़ अ गवर्नर के साथ एक हाउसेज होंगे. हाउसेज में हो सकता है यूनिकैमरल और या फिर बाईकैमरल. यूनिकैमरल का मतलब सिर्फ एक ही हाउस है, दैट इज़ विधानसभा, और बाईकैमरल का मतलब है एक और हाउस है, दैट इज़ विधान परिषद. 2 हाउसेज मीन्स विधानसभा हम कह सकते हैं लोअर हाउस, विधान परिषद कह सकते हैं अपर हाउस. यूनिकैमरल मीन्स जहाँ पे सिर्फ गवर्नर है और एक हाउस है, वो एक हाउस जो होगा दैट विल बी असेंबली, दैट मीन्स विधानसभा. जहाँ पे जिन स्टेट्स में 2 हाउसेज हैं, जहाँ पे बाईकैमरल स्ट्रक्चर है, वहाँ विधान परिषद होगी, विच कैन ऑल्सो बी सेड एज लेजिस्लेटिव काउंसिल. हमारे जो हमारा इंडिया है, इसमें देयर आर ओनली 6 स्टेट्स जिनके पास 2 हाउसेज हैं. बाकी जितने भी स्टेट्स हैं दे आर हैविंग ओनली 1 हाउस, दैट इज़ लेजिस्लेटिव असेंबली. प्लीज़ क्लियर करो, डोंट बी कन्फ्यूज्ड कि इट्स नॉट कंपल्सरी कि स्टेट लेजिस्लेचर में 2 हाउसेज होना ज़रूरी है. इट कैन बी द केस जहाँ पे सिर्फ एक ही हाउस है, दैट विल बी कॉल्ड एज यूनिकैमरल स्ट्रक्चर. और मोस्टली हर स्टेट में ऐसे ही है, अपार्ट फ्रॉम 6 स्टेट्स जिसमें विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल भी प्रेजेंट है. ऑलमोस्ट अगर आप पार्लियामेंट से कंपेयर करोगे तो जैसे वहाँ पे प्रेसिडेंट और लोकसभा राज्यसभा था, वैसे यहाँ पे भी गवर्नर, विधानसभा एंड विधान परिषद है. नेक्स्ट आते हैं 169 टॉक्स अबाउट कि कई बार ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करना है, स्टेट्स चाहते हैं कि हमारा यूनिकैमरल स्ट्रक्चर है, हम इसको बाईकैमरल बनाना चाहते हैं, तो वो अलाउ करता है, दैट बना सकते हैं. नेक्स्ट आता है थ्रू ऑफकोर्स थ्रू अमेंडमेंट. बट नेक्स्ट आता है
कि अगर वो चाहते हैं बाई कैमरल स्ट्रक्चर है और उनको अबॉलिश करनी है अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हटा सकते हैं, बट दैट डिपेंड्स ऑन कि उन्हें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट असेंबली। तो असेंबली के जितने भी मेंबर्स हैं वो प्रेजेंट रह के वोट करेंगे दैट वेदर दे वांट टू इंक्लूड और अबॉलिश द विधान परिषद। नेक्स्ट आते हैं 170 टॉक्स अबाउट लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल मेंबर्स कितने होंगे, कॉम्पोजिशन कितना होगा। कॉम्पोजिशन कहता है कि इन दिस लेजिस्लेटिव असेंबली मैक्सिमम 500 मेंबर्स हो सकते हैं, मिनिमम 60 मेंबर्स हो सकते हैं। और ये जो मैक्सिमम और मिनिमम है दैट इज़ डिफाइंड कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको स्टेट को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाएगा, और ये डिवीजन कैसे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। जो भी हमारे कंसेंसस आए होते हैं इसमें वी स्टिक टू 2001 कंसेंसस। 2001 कंसेंसस के हिसाब से जितनी पॉपुलेशन होगी हम क्या करेंगे, उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड कर देंगे और उतनी सीट्स अलाउ कर देंगे थ्रू आउट द स्टेट। नेक्स्ट आता है कि नाउ व्हाट कम्स 171 टॉक्स अबाउट कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद। अगर किसी स्टेट में विधान परिषद है तो उसमें कितने मेंबर्स होंगे। तो अगर जिस स्टेट में विधान परिषद है तो उसके मेंबर्स शुड नॉट बी मोर देन मेंबर्स 1/3 मेंबर्स ऑफ असेंबली। तो एक एग्जांपल ले लो, जैसे यूपी है, यूपी में इफ़ विधान परिषद में उतने ही मेंबर्स होंगे जितने 1/3 है विधानसभा में। एक एग्जाम्पल ले लो, जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल आई एम सेइंग, कोई ए स्टेट है, वहाँ पे देयर आर 360 मेंबर्स इन विधानसभा। तो 360 मेंबर्स यानी इसका 1/3 कर दो, 360 का 1/3 इज़ 120। तो उसके विधान परिषद में 120 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, यानी 120 से कम रह सकते हैं। तो और इसका मिनिमम भी डिफाइन कर दिया है, दैट इज़ मिनिमम 40 मेंबर्स। अब कम से कम विधान परिषद बनाई है तो 40 मेंबर्स तो होने ही हैं। मैक्सिमम डिफाइन कर दिया है कि असेंबली से 1/3 ज़्यादा नहीं जाएंगे। आई होप दिस कॉम्पोजिशन इज़ ऑलमोस्ट क्लियर टू यू कि किस तरह से ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जो पार्लियामेंट है वो डिसाइड करती है दैट ये जो असेंबली या जो विधान परिषद में जो मेंबर्स हैं वो किस अकॉर्डिंग इनका कॉम्पोजिशन होगा, स्पेसिफिकली फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल, कि अगर हमें इनके इलेक्शन कैसे करवाने हैं, इनका जो मेंबरशिप है, कितने मेंबर्स किस किस तरह से हम लेकर आएंगे, उसको ओवरऑल पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। अभी जब हम विधान परिषद में आएंगे वी विल सी कि मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं या विधानसभा में मेंबर्स कैसे इलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट है 174 विच टॉक्स अबाउट कि सेशंस कैसे होंगे, गवर्नर करवाएगा, समन, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। ये टर्म्स हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल 200 एंड 201 वेयर गवर्नर इज गिविंग द एसेंट टू द बिल्स। यहाँ पे सेम बिल एक्ट में तभी कन्वर्ट होगा जब गवर्नर की एसेंट उसको मिल जाएगी। गवर्नर किस किस तरह से एसेंट दे सकता है, दिस वील सी इन द वीडियो। मूविंग फॉरवर्ड, कॉम्पोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। कॉम्पोजिशन कहता है कि यूनिकैमरल बाईकैमरल सिस्टम हो सकता है। 168 प्रोवाइड्स देयर आर 2 फॉर्म्स। यूनिकैमरल मतलब सिर्फ हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, हमारे पास लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रेजेंट नहीं है। तो एक ही बॉडी, एक ही अगर बॉडी है हमारे पास, एक ही गवर्नर के बाद सिर्फ 1 लेजिस्लेचर इज़ देयर तो हम उसको बोलेंगे यूनिकैमरल। स्टेट्स जिस तरह से राजस्थान के पास पहले काउंसिल हुआ करती थी 1958 में, उन्होंने इसको 1958 के पहले थी उसको अबॉलिश कर दिया, दोबारा से 2012 में वो लेकर आए अपनी काउंसिल को एंड देन उन्होंने दोबारा अबॉलिश कर दिया। दैट मीन्स ये जो हम अभी आर्टिकल देख रहे थे, आर्टिकल 169 की अबॉलिशन क्रिएशन, ये स्टेट्स कर सकते हैं। नाउ कम्स कि इसके अलावा देर आर सो मेनी स्टेट्स लाइक MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, they follow the models of single structure. So now this unicameral structure is considered as economical, efficient and avoids legislative deadlocks. I told you डेडलॉक्स का मतलब क्या होता है, व्हेन एक बिल पास हुआ है फर्स्ट हाउस से, सेकंड हाउस उस बिल को पास नहीं कर रहा है या फॉरवर्ड नहीं कर रहा है, तो जब तक वो सेकंड हाउस से फॉरवर्ड नहीं होगा वो गवर्नर के पास नहीं जाएगा, और गवर्नर के पास नहीं जाएगा तो वो बिल एक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इन दैट केस
जॉइंट सेशन करना पड़ेगा। अब हर एक लॉ के लिए जॉइंट सेशन करेंगे तो फिर अपने अपने हाउसेस में क्या डिस्कस कर पाएंगे, टाइम बाउंड है चीज़ें। सो दैट मीन्स कि हर बार फिर डेडलॉक की सिचुएशन रहेगी। सो ये डेडलॉक वाली सिचुएशन अगर सिंगल हाउस है तो आती ही नहीं है। तो अ काइंड ऑफ की एक एडवांटेज है कि गवर्नर है और एक हाउस है, दैट्स इट। सो वहाँ पे इश्यूज़ कम होते हैं और लॉज को पास कराना इज़ अ बिट ईजियर एज़ कम्पेयर टू व्हेन देयर आर टू हाउसेस। प्रोसीजर लंबा हो जाता है और प्रोसीजर अगर लंबा है तो टेक्निकलिटीज़ भी इंक्रीज होती हैं। नेक्स्ट आता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल में गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर विधानसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल दैट इज़ विधान परिषद, यहाँ पे दो हाउसेज होंगे। इनको हम बोलेंगे बाई कैमरल। और एज ऑफ नाउ देयर आर ओनली 6 स्टेट्स जिनके पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर प्रेजेंट है। कौन कौन से हैं स्टेट? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। This means that if we are having 28 total states, each state is having their own legislature, हर state का अपना अपना legislature है, out of which 6 are bicameral states जहाँ पे हमारे पास दोनों houses है। apart from that 22 states are having their single legislature in their houses. So now नेक्स्ट इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ। हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी मैक्सिमम इट कुड बी 500 एंड मिनिमम इट कुड बी 60। तो मैक्सिमम मिनिमम इज टोल्ड बाय आर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आते हैं विधानसभा पे, जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोलते हैं। ये जो विधानसभा है दिस इज़ ओनली इन 6 स्टेट्स। अब 6 स्टेट्स में है बट फिर भी इसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आर टोल्ड एज पर 170 आर्टिकल। इट हैज़ बीन मैंशनड कि 60 मिनिमम मेंबर्स होंगे and maximum members would be 500, but this particular composition is of state legislative assembly। और यहाँ पे when it comes to विधानसभा ये 40 मिनिमम जाएगा एंड मैक्सिमम जाएगा 1/3 ऑफ जो भी आपकी स्टेट की विधानसभा है उसके मेंबर्स। नेक्स्ट आता है कि विधानसभा के जो मेंबर्स हैं उनको हम स्टेट वाइज देखते हैं। जितना बड़ा स्टेट होगा उतनी ज़्यादा उसके पास सीट्स होंगी और जितना स्मॉलर स्टेट्स है उसकी उतनी कम सीट्स होंगी। नाउ सी हम बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली की, राइट। सो ये जो मैंने बताया 40 और 1/3 ऑफ विधानसभा दिस इज़ फॉर काउंसिल, राइट। अब यहाँ पे असेंबली की बात है। असेंबली दैट मीन्स इट इज़ अ लोअर हाउस। जो लोअर हाउस होता है उसके जो मेंबर्स हैं दोज आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज और इनकी इलेक्शन होती है। इलेक्शन फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये जो इलेक्शंस होती हैं स्टेट इलेक्शंस हैं, वहाँ उस स्टेट के जो लोग होते हैं दे वोट फॉर द पीपल जिसको वो अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में यानी एमएलए बनाकर भेजना चाहते हैं। तो हम डायरेक्टली एमएलए को चूज़ करते हैं। नाउ कम्स, पहले क्या होता था कि अगर कोई स्टेट है, मान लो यूपी है, उसमें 403 सीट्स हैं, तो गवर्नर हर एक स्टेट का एक मेंबर फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को नॉमिनेट करता था इफ़ दैट कम्युनिटी इज़ नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। बट जैसे पार्लियामेंट में जो लोकसभा है उससे उन सीट्स को हटा दिया गया है, वैसे यहाँ पे भी इस प्रोविज़न को 1/4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने डिलीट कर दिया था दैट एंग्लो इंडियन की अब किसी भी तरह का कोई भी नॉमिनेशन नहीं किया जाएगा। नाउ कम्स ऑन कि क्वालिफिकेशन क्या, अगर हमें एमएलए बनना है तो क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। सो अंडर 173 देयर इज़ क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो सबसे पहला हो गया दैट ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, उसके पास सिटीजनशिप होनी चाहिए, प्लस वो 25 ईयर्स से कम एज का नहीं होना चाहिए। 25 ईयर्स या उससे ज़्यादा हो सकता है बट नॉट लेस देन 25 ईयर्स। ऐसी कोई भी अदर क्वालिफिकेशन जो कि पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब करता है ऑन दैट बिहाफ, जो भी लॉ बनाएगा पार्लियामेंट उस अकॉर्डिंग कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन भी पार्लियामेंट रख सकता है। एंड लास्ट इज दैट ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर एनी गवर्नमेंट। तो किसी भी तरह का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड करता हुआ नहीं होना चाहिए। सो इफ़ दीज क्वालिफिकेशंस आर देयर द पर्सन इज़ एलिजिबल कि वो एमएलए के लिए कंटेस्ट कर सकता है। नाउ सी ड्यूरेशन कितनी होती है। ड्यूरेशन इज़ 5 ईयर टर्म। अगर सब कुछ ठीक रहा, डिसोल्यूशन नहीं हुआ, नॉर्मल अगर सर्कमस्टेंसेस रहे, अपना अच्छा सा टर्म अगर कंप्लीट किया, दैट मीन्स 5 ईयर टर्म इज़ देयर फॉर ईच विधान
सभा. सो नाउ नॉर्मल ड्यूरेशन विच मीन्स कि सब्जेक्ट टू अर्लियर डिसोल्यूशन. 5 साल आराम से निकल के कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो 5 साल का टाइम है. एक साथ इलेक्शन हो रहा है, एक साथ ओथ ली जाती है और एक साथ ही अपनी सीट्स पे दे एक्वायर द सीट्स. सो नाउ जब इनका डिसोल्यूशन होगा या जब ये टाइम पीरियड एक्सपायर होगा, ईच पर्सन ऑफ दैट विधानसभा सेम डेट पे ही दे हैव टू वेकेट देयर सीट्स. अगर अर्ली डिसोल्यूशन भी हो रहा है तो एक साथ डिसॉल्व करी जाएगी पूरी विधानसभा. अगर एक्सपायरी हो रहा है टर्म का, उनका टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा है तो एक साथ टाइम पीरियड ख़त्म होगा. और ये डिसोल्यूशन जो होता है इसको करने की पावर है गवर्नर के पास ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. नेक्स्ट आते हैं, इसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है. द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज स्पीकर. यहाँ पे भी स्पीकर होगा और स्पीकर के बाद हायरार्की में देयर विल बी डेप्यूटी स्पीकर. स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को जो भी विधानसभा के मेंबर्स हैं वो खुद आपस में बात करके इलेक्ट कर लेते हैं दैट नाउ ही विल बी द स्पीकर एंड दिस पर्सन विल बी द डेप्यूटी स्पीकर. काम क्या होगा दैट जो भी सेशंस हैं उनको मैनेज करना, एडमिनिस्टर करना टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन दैट पर्टिकुलर हाउस एंड डिसाइड द डिसक्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल. यानी अगर कोई डिफेक्शन करता है तो उसने डिफेक्शन किया है या नहीं किया है, उसका डिसक्वालिफिकेशन करना है या नहीं, दिस इज़ द कॉल ऑफ स्पीकर ओनली. नेक्स्ट एक वर्ड आता है कोरम. कोरम मीन्स 1/10th ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस इंक्लूडिंग द स्पीकर. ये जो कोरम वर्ड है दिस इज़ द जनरलाइज्ड वर्ड. ये स्टेट लेजिस्लेचर पे भी अप्लाई करेगा, ये पार्लियामेंट पे भी अप्लाई करेगा. कोरम का मतलब है 1/10th मेंबर का होना ज़रूरी है एट एवरी डे. जो भी सेशन के डेज चल रहे हैं अगर आपको कंप्लीट सेशन करवाना है. एक हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे मान लो देयर आर 500 पीपल इन दैट हाउस. 500 का 1/10 कितना होगा. 500 का 1/10 इज़ 50. एटलीस्ट 50 मेंबर्स होने चाहिए जब आप उस सेशन में सब प्रेजेंट है एंड दे आर नाउ डिस्कसिंग समथिंग जिस पे डिस्कशन हो सकता है, जिस पे वोटिंग हो सकती है. तो मिनिमम रिक्वायर्ड मेंबर्स जिनकी प्रेजेंस ज़रूरी है उस पर्टिकुलर सेशन के दिन में दैट इज़ 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस. जितने टोटल लोग हैं उसका 1/10 कैलकुलेट कर लो तो दैट विल बी रिक्वायर्ड, मिनिमम रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द डेली बिजनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर हो चाहे वो पार्लियामेंट हो. नेक्स्ट आता है एमरजेंसी के टाइम में क्या होगा इस हाउस का. ड्यूरिंग एमरजेंसी ये जो विधानसभा है इसकी लाइफ 1 साल एक्सटेंड करी जा सकती है बाय पार्लियामेंट. अब ये जो इमरजेंसी लगती है 356 में, यानी उस स्टेट के ऊपर प्रेसिडेंट का रूल आ गया है. अब जो प्रेसिडेंट की साइड से जितनी भी चीज़ें हैं वो फॉलो अप करी जाएंगी. तो विधानसभा यानी स्टेट लेजिस्लेचर का क्या होगा, तो उस केस में पार्लियामेंट 1 साल का टाइम पीरियड एक्सटेंड कर सकती है. Now comes an important note that Speaker of Vidhan Sabha does not vacate office immediately upon the dissolution of the House. They continue until the new House's first meeting. एक मानो 2 conditions है. एक हो गया कि डिसोल्यूशन हो गया हाउस का. अब डिसोल्यूशन है तो सारे जने एक साथ अपना ऑफिस वेकेट कर देंगे, दोबारा इलेक्शन होगा, इलेक्शन आके नई विधानसभा आएगी. अब जब नई विधानसभा आई है अभी तो उन्हें टाइम लगेगा ना आपस में एक दूसरे से डिसाइड करने में कि हम किसको स्पीकर बनाएं. तो पहली मीटिंग में कौन कंडक्ट करवाएगा. इन दैट केस जो पिछली वाली विधानसभा होती है उसका स्पीकर ऑफिस वेकेंट नहीं करता है. वो तब तक वेकेंट नहीं करेगा जब तक अगला जो आने वाला हाउस है उसकी पहली मीटिंग ना हो जाए. सेम गोज फॉर एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑल्सो, कि 5 साल कंप्लीट हो गए, बाकी सारे मेंबर्स हट गए, बट स्पीकर कंटिन्यू रहेगा जब तक अगली विधानसभा जो नई विधानसभा आ रही है इलेक्ट होके उसका पहला सेशन नहीं हो जाएगा. तो पहले सेशन पर नॉर्मली भी अगर सिचुएशन है एक्सपायरी हुआ है टर्म का, नए लोग आ रहे हैं, तो उसमें भी ही हैज़ टू कंटिन्यू अंटिल द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यू हाउस. आगे बढ़ते हैं विधान परिषद पे. विधान परिषद वी से दैट इट इज़ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम अपर हाउस भी बोल सकते हैं. नाउ विधानसभा इज़ अ टेम्परेरी हाउस क्योंकि उसका डिसोल्यूशन हो सकता है जैसे कि लोकसभा का हो जाता है, पर यहाँ पे विधानसभा इज़ कॉल्ड एज परमानेंट बॉडी. परमानेंट बॉडी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इसको डिसॉल्व नहीं कर सकते. रीज़न अगेन वही है कि 1/3 ऑफ टोटल मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years. हर 2 साल में इसके मेंबर्स रिटायर होते रहते हैं. टोटल मेंबरशिप में से जितने भी मेंबर्स जो हैं वो मैक्सिमम 1/3 एक्सीड नहीं करने चाहिए ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट और 40 से कम भी नहीं होने चाहिए. तो 40 से लेके
जो रेंज है दैट इज़ 1/3 ऑफ विधानसभा ऑफ दैट स्टेट. सो दिस इज़ द मेंबरशिप ऑफ विधान परिषद और द लेजिस्लेटिव काउंसिल. अब इनके मेंबर्स को हम इलेक्ट कैसे करते हैं? इनके मेंबर्स का इलेक्शन होता है. देयर आर वेरियस फ्रैक्शंस डिसाइडेड एंड फ्रैक्शंस के हिसाब से हम उनके मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे या अपॉइंट करेंगे. 1/3 members are elected by members of legislative assembly amongst the person who are not the members of that house. This means कि जो MLA है यानी ये जो विधानसभा है उसी हाउस का, उस हाउस का विधानसभा 1/3 मेंबर. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. देयर आर 360 सीट्स. 360 सीट्स का जो 1/3 होगा उतनी सीट्स यानी 1/3 कर लो 120. सो ये जो 120 सीट्स है 120 सीट्स के ऊपर जो MLAs है वो वोट करेंगे. राइट. ये MLAs वोट करेंगे, उन लोगों को इलेक्ट करेंगे जो उनके हाउस के मेंबर नहीं है, यानी अपने मेंबर्स के अलावा किन्हीं लोगों को इलेक्ट करना है. 1/3 लोकल बॉडीज़ इलेक्ट करेंगी. 1/3 लोकल बॉडीज़ का मतलब है कि मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एंड अदर लोकल अथॉरिटीज़. उसी स्टेट की जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनके पास इस चीज़ का राइट होता है कि वो बाय इलेक्टोरेट डिसाइड करें अपने 1/3 मेंबर्स को वहाँ पे भेजें. सो लोकल बॉडीज़ का भी पिक्चर काफ़ी ज़्यादा क्लियर है दैट उनका भी से होता है विधान परिषद में. सो म्यूनिसिपैलिटीज़ के मेंबर्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर्स प्लस जो बाकी लोकल अथॉरिटीज़ है वो भी वोट करेंगी और अपने मेंबर्स को विधान परिषद में भेजेंगी. नाउ next is 1/12 by teachers. Teachers of not less than 3 years standing in educational institution within a state. वो teachers जिनको एटलीस्ट 3 साल हो गए हैं उसी स्टेट में पढ़ाते हुए, तो वो teachers वोट करते हैं for sending 1/12 members of this विधान परिषद. बचा हुआ 1/12 इज़ बाय द ग्रेजुएट्स. उस स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं हु आर द रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स ऑफ नॉट लेस देन 3 years स्टैंडिंग रिजाइडिंग इन द स्टेट. वहीं पे वहीं उसी स्टेट के मेंबर्स हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं और एटलीस्ट 3 years का गैप है. इन दैट केस वो जो ग्रेजुएट्स हैं दे विल अपॉइंट 1/12 मेंबर्स ऑफ दोज विधान परिषद सीट्स. लास्ट आता है 1/6. 1/6 इज नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर. गवर्नर नॉमिनेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ एनी पर्सन हु इज हैविंग द स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन देयर ओन एरिया, दैट इज लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट और एनी काइंड ऑफ सोशल सर्विस. तो इस हिसाब से कि जो बचे हुए 1/6 हैं दोज विल बी नॉमिनेटेड बाय गवर्नर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो इस हिसाब से हम डिवाइड करते हैं दैट हाउ दीज थिंग्स आर टू बी मैनेज्ड. कैसे कैसे देयर आर सो मेनी फ्रैक्शंस. उन फ्रैक्शंस में द पीपल आर बीइंग इलेक्टेड. नेक्स्ट आता है टाइम पीरियड. टोटल टाइम पीरियड इज ऑफ 6 years. जितने भी MLCs होते हैं, अब उनको हम MLAs बोल रहे थे क्योंकि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. यहाँ पे हम बोलते हैं MLC, दैट मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. 6 साल का टर्म होता है और हर पर्सन के हिसाब से देखते हैं. हम ओवरऑल विधान परिषद का टाइम पीरियड नहीं देख रहे हैं, हम ईच मेंबर के अकॉर्डिंग उसको 6 years दे रहे हैं. जब जिसका जैसे ही उसने सीट्स को एक्वायर किया है, जैसे ही सीट पे वो बैठा है उसका 6 year वहाँ से स्टार्ट होगा. और जो लोग जैसे 6th year अपना कंप्लीट करेंगे रिटायर कर जाएंगे. सो एवरी 2 years कंटिन्यूटी में 1/3 members keep on retiring and 2/3 members are always present in that house. So that is why it is called as permanent house. नेक्स्ट आता है मिनिमम एज. मिनिमम एज इज़ MLA की 25 थी, यहाँ पे 30 years ऑफ एज है. एंड 30 years ऑफ एज है तो एक ऐसे कह लो अ काइंड ऑफ डेलिब्रेटिव या सीनियर कैरेक्टर शो करता है. इसीलिए इस हाउस को हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोलते हैं. द रीज़न इज़ द हायर एज रिक्वायरमेंट एंड इट्स रोल एज अ रिवाइजिंग चेंबर. तो रीज़न क्या होता है, क्योंकि एज वाइज थोड़ा सा हायर चला जाता है तो हम मानते हैं सीनियर कैरेक्टर है. प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज़ चेयरमैन और चेयरमैन की हायरार्की में जस्ट नीचे होते हैं डेप्यूटी चेयरमैन. सो चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन मिलके इस पर्टिकुलर हाउस का जो ओवरऑल जो कंडक्ट है, बिजनेस है, इस चीज़ को मैनेज करते हैं. इलेक्टेड बाय द मेंबर्स अमंग्स देमसेल्व्स. आपस में ही मेंबर्स डिसाइड कर लेते हैं कि कौन चेयरमैन होगा और कौन डेप्यूटी चेयरमैन होगा. नेक्स्ट आता है क्रिएशन एंड अबॉलिशन. ये हम डिस्कस कर चुके हैं 169 में कि स्टेट
के अपने ऊपर है, उसके ऊपर है दैट वेदर दे वांट टू क्रिएट एनी विधानसभा, कि हम एडिशन कर ले विधान, अगर विधान परिषद नहीं है हमारे पास तो उसको हम इन एडिशन टू विधानसभा लेकर आए, यूनिकैमरल से बाई कैमरल चले जाएं, या अगर बाई कैमरल है तो यूनिकैमरल बन जाए, यानी जो विधानसभा के साथ जो विधान परिषद है हम उसको अबॉलिश कर दें। तो इस चीज़ को स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना होता है बाय विधानसभा के मेंबर्स। सो 2/3 मेजॉरिटी इज़ रिक्वायर्ड। आई होप ये लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल क्लियर हुआ होगा। नाउ कमिंग ऑन टू द गवर्नर्स रोल इन द स्टेट लेजिस्लेचर। गवर्नर का क्या रोल होता है? वाई गवर्नर सी इज़ अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो बट वाई वी आर गिविंग द इम्पॉर्टेंस टू द गवर्नर हियर, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इज़ इन्वॉल्व इन द passing of the laws. So here we can say that if we talk about the overall legislature, governor is the integral part to it, और ये member किसी भी house का नहीं होता है, but he is having the major part, क्योंकि जब तक assent नहीं देगा बिल एक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। हाउसेस को बुलाना, एड्रेस करना, मैसेजेस भेजना, दिस इज़ द टास्क ऑफ गवर्नर। तो ओवरऑल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रूशियल कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है जो कि इनको लेजिस्लेटिव प्रोसेस में इंक्लूड करता है। वन बाय वन वील सी कि क्या क्या चीज़ें हैं। समनिंग एंड प्रोरोगेशन। समनिंग, वी नो द वर्ड दैट वी आर कॉलिंग। गवर्नर कॉल करता है मेंबर्स को, ईच हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर को, कि कम ऑन लेट्स मीट। और मिलना क्यों है? किसी भी रीज़न से मिलना हो सकता है, गवर्नर उस चीज़ को भी बताएगा दैट फॉर व्हाट रीज़न ही इज़ थिंकिंग फिट कि वी शुड मीट। नेक्स्ट आता है गवर्नर में प्रोरोग द हाउसेज एंड डिसॉल्व द विधानसभा। प्रोरोग हाउसेज मतलब सेशन कंप्लीट हो रहा है, एक साल में कई सारे सेशंस में मिलते होंगे, और सेशन जब कंप्लीट हो रहा है, वाइंड अप हो रहा है कि ये वाला सेशन अब ख़त्म हो रहा है, तो अब जब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे सो उसके लिए एंडिंग जो कंक्लूजन होता है उसको बोलते हैं प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन का काम गवर्नर का होगा, गवर्नर एंड करेगा। नेक्स्ट आता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन भी गवर्नर करता है, बट डिसोल्यूशन इज़ डन बाय विद द एड एंड एडवाइस ऑफ सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। डिसोल्यूशन मतलब कंप्लीटली जो भी विधानसभा है उसको ख़त्म कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। रीज़न कुछ भी हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है, तब गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विधानसभा को डिसॉल्व कर देता है। विधानसभा डिसॉल्व यानी अब नया इलेक्शन होगा और नई विधानसभा उस स्टेट में इलेक्ट करी जाएगी। ऑल्सो ये जो सेशंस होते हैं इनमें 6 मंथ्स का गैप नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स एटलीस्ट एक ईयर में हमारी जो हाउसेज हैं वो 2 टाइम्स मीट करेंगे। सो जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो 2 बार तो एटलीस्ट मिल रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही कह रहा है अंडर 174 कि आप 6 मंथ से ज़्यादा का गैप बीच में नहीं रख सकते। नेक्स्ट आता है एड्रेसेस एंड मैसेजेस। 175 में इट इज़ अ राइट ऑफ द गवर्नर टू एड्रेस द मैसेज एंड सेंड द मैसेज टू द हाउस और हाउसेस। मतलब अगर 2 हाउस हैं तो दोनों को मैसेज भेज सकता है, सिंगल हाउस है तो उनको भी मैसेज भेज सकता है फॉर द पर्पस ऑफ कि उनकी अटेंडेंस इज़ रिक्वायर्ड। अब ये अटेंडेंस क्यों रिक्वायर्ड होगी? फॉर एनी पर्पस विच इज़ गवर्नर इज़ थिंकिंग फिट कि चलो अब हमें इस चीज़ पे डिस्कस करना चाहिए। गवर्नर कैन ऑल्सो सेंड द मैसेजेस टू बोथ द हाउसेज और द सिंगल हाउस डिपेंडिंग ऑन कैसा स्टेट लेजिस्लेचर है, एंड इट कैन बी इन रिस्पेक्ट टू द बिल जो पेंडिंग है उस लेजिस्लेचर में, या फिर जो गवर्नर है उसको अगर कोई भी चीज़ अगर फिट लग रही है जैसे इसके लिए हाउस को मिलना चाहिए तो वो मैसेज भेज के हाउसेज के जो मेंबर्स हैं उनको बुला सकता है। इसी का एक आगे है एक्सपेंशन दैट इज़ 176 जिसमें आता है स्पेशल एड्रेस। 176 में स्पेशल एड्रेस करता है कि जैसे ही किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली का एग्जांपल लेते हैं कि मान लो 2025 में पहली बार आई तो अब उसके सेशंस होंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, एटलीस्ट साल में 2 बार तो मिल ही रहा है, हम मान के चलते हैं चलो 3 बार मिल रहा है किसी हाउस की, फर्स्ट 3 सेशन हो रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब कोई नई विधानसभा आई है या नया असेंबली अभी बनी है तो पहला सेशन है, फर्स्ट सेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर असेंबली, तो उसमें गवर्नर विल बी द पर्सन जो स्पेशली एड्रेस करेगा। और हर साल, अब क्योंकि 5 साल का टाइम पीरियड है
तो 27, 28 एंड ऑफ कोर्स 29 ऑल्सो, अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसमें भी जितने भी सेशंस होंगे, ये 3 सेशंस अपने अकॉर्डिंग रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो हर साल का जो पहला सेशन होगा उसमें भी एड्रेस करने का टास्क विल बी ऑफ गवर्नर। तो ये एक स्पेशल एड्रेस होता है जहाँ पे आफ्टर जनरल इलेक्शन जब लेजिस्लेटिव असेंबली पहली बार मीट करती है तब भी गवर्नर इस चीज़ को एड्रेस करता है। टुगेदर भी कर सकता है, दोनों हाउसेस का एक साथ भी एड्रेस कर सकता है, अलग अलग भी कर सकता है, एंड वो सिंगली भी हर साल जब भी पहला सेशन होगा हाउसेस के पहले सेशन में वो एड्रेस करेगा। इसमें ये भी रूल्स डिसाइड होते हैं कि हम या तो सिंगल हाउस या दोनों हाउसेस में कि हम कितना कितना टाइम किस मैटर के डिस्कशन में हम कितना टाइम पीरियड लगाएंगे, उस चीज़ का भी डिस्कशन हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ आर्टिकल 200 जो कि गवर्नर की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसे हमने प्रेसिडेंट के लिए पढ़ा था 3 ऑप्शंस होते हैं, एसेंट दे दे, एसेंट विदहोल्ड कर दे या फिर उसको रिकंसिडर करने के लिए भेज दे। सेम कम्स हियर फॉर द गवर्नर, बट एक एडिशनल पॉइंट और है। पहला है कि कोई बिल आया है, देखो एक मान के चलो फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस एंड गवर्नर, दूसरा हो सकता है फर्स्ट हाउस एंड गवर्नर, यही 2 ही चीज़ें होंगी। अब मान लेते हैं कि एक बिल है, इंट्रोड्यूस किया गया फर्स्ट हाउस में, इस हाउस में इंट्रोड्यूस किया गया, यहाँ से पास हो गया, मेजॉरिटी मिल गई, सेकंड हाउस में चला गया, सेकंड से भी पास हो गया, मेजॉरिटी मिल गई, अब गवर्नर के पास है। गवर्नर के पास ऑप्शन क्या होगा, या तो वो एसेंट दे दे, जैसे ही वो एसेंट देगा बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो वो उस एसेंट को रोक के रखे। अब एसेंट विद होल्ड कर लिया, अपने पास होल्ड कर लिया, बिल पास नहीं कर रहा है। थर्ड आता है रिटर्न द बिल फॉर रिकन्सिडरेशन। मनी बिल के अलावा जितने भी बिल हैं, जो भी ऑर्डिनरी अमेंडमेंट बिल्स या कह लो हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल बिल्स अपार्ट फ्रॉम जो भी मनी बिल्स हैं, जितने भी बिल्स हैं एक्सेप्ट मनी बिल्स, वो वापस से रिकंसिडर करने के लिए उसी हाउस को भेजेगा जहाँ से उसके पास आया है। नाउ डिपेंड्स कि ये हाउस उसको कंसिडरेशन के साथ एक्सेप्ट करके भेज रहा है या नहीं भी एक्सेप्ट कर रहा है। इसके बाद जब ये आगे भेजेगा तो इन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। लास्ट आता है रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जो गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए रोक के रखता है, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रोक के रखता है। ये रीज़न क्या होता है रोक के रखने का, देयर आर सर्टेन बिल्स विच नीड द प्रेसिडेंट्स एसेंट, और वहाँ पे प्रेसिडेंट तभी पिक्चर में आता है जब देयर इज़ डेविएशन फ्रॉम द नेशनल लॉज। वो स्टेट लॉ कुछ इस तरह का है जहाँ पे थोड़ा सा डेविएशन है हमारे यूनियन लॉज या लॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट से, जहाँ पे गवर्नर को रिक्वायर्ड है कि वो प्रेसिडेंट की एसेंट ले, जिससे कि वो अपनी टेरिटरी में इस पर्टिकुलर लॉ को प्रिवेल करवा पाए। अगर वो प्रेसिडेंट की एसेंट नहीं लेता है, क्योंकि यही तो एक्सेप्शन है, अगर प्रेसिडेंट की एसेंट नहीं लेके खुद से लॉ पास कर दिया तो रिपग्नेंसी में आ जाएगा, और रिपग्नेंसी में सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा, स्टेट का लॉ प्रिवेल नहीं करेगा। तो कुछ बिल्स में ये गवर्नर का डिस्क्रिशन है, वो रिजर्व कर लेता है बिल प्रेसिडेंट्स की कंसिडरेशन के लिए। नेक्स्ट आता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर वी नो एक टेम्प्रेरी लॉ है, टेम्प्रेरी लॉ बनाया जा रहा है। ऑर्डिनेंस तभी बनेगा, तभी ये जो पावर होगी ये गवर्नर को मिलेगी। 2 केसेस है कि एक इमरजेंसी सिचुएशन है और स्टेट लेजिस्लेचर अभी सेशन में नहीं है, क्योंकि देखो 3 भी सेशन है तो बीच में कुछ मंथ्स का गैप है। तो कभी ऐसी कोई सिचुएशन आ गई कि बीच में गैप है और वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बैठा है, बट हमें तुरंत एक लॉ चाहिए जिससे कि हम उस सिचुएशन को मैनेज कर सके, तो वहाँ पे गवर्नर के पास पावर होती है दैट ही में प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस, यानी एक लॉ बना सकता है। टेम्परेरी लॉ है बट इस लॉ का सेम इफेक्ट होता है जैसे कि एक एक्ट जो कि स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया हो, बट देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस एज प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस। जैसी प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर में जो लिमिटेशंस थी, सेम लिमिटेशंस गवर्नर के ऊपर भी अप्लाई करी जाएंगी। नेक्स्ट आता है कि ये जो ऑर्डिनेंसेस होते हैं, पहली तो 2 कंडीशंस हैं, इमरजेंसी सिचुएशन हो या फिर वो उस टाइम पे स्टेट लेजिस्लेचर अभी फ़िलहाल में प्रेजेंट नहीं है। इन 2 ही केसेस में गवर्नर को ये पावर मिलेगी। प्लस देयर इज़ द सीन कि जो गवर्नर होता है वो विदाउट प्रेसिडेंट के इंस्ट्रक्शंस के, सब्जेक्ट टू द लिमिटेशंस ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस, मतलब उसको कई बार कुछ सिचुएशन में प्रेसिडेंट की भी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके बिना वो ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट नहीं करवा सकता। तो कई बार कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जैसे
कुछ जहाँ पे प्रेसिडेंट की एसेंट रिक्वायर्ड है, जहाँ पे सेम प्रोविजंस है जिनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इनवैलिड कर रखा है, तो वो जो बिल्स है वो प्रेसिडेंट की कंसिड्रेशन के लिए रिजर्व्ड है, जहाँ पे प्रेसिडेंट की कंसिड्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, तो उन बिल्स पे जो गवर्नर है वो ऑर्डिनेंसेस पास नहीं करेगा, शॉर्टकट अप्लाई नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है कि ये जो ऑर्डिनेंस पास हुआ है, चलो इसका सेम फोर्स है जैसे कि किसी स्टेट ने अपने एक्ट को पास किया हो, बट जैसे ही उनके हाउसेस मीट करेंगे, जैसे ही नेक्स्ट सेशन आएगा, नेक्स्ट सेशन में जिस भी लेटर वाला हाउस जब भी मिला है, जिस भी डेट पे मिला है, उस डेट से 6 वीक्स का कैलकुलेशन किया जाएगा। 6 वीक्स के बाद जैसे ही 6th वीक एक्सपायर होगा, वो जो ऑर्डिनेंस है वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। बट अगर इस 6 वीक्स के एक्सपायरेशन के पहले असेंबली तो होगी ही होगी, अगर काउंसिल है तो वो भी, अगर सिंगली असेंबली है, अगर इन दोनों ने रेजोल्यूशन पास करके डिसअप्रूव कर दिया इस ऑर्डिनेंस को, तो वो देन एंड देयर कैंसिल हो जाएगा, हम 6 वीक्स का वेट नहीं करेंगे। अगर अप्रूव हो जाता है तो वो एज इट इज़ कंटिन्यू रहता है, बट इसके लिए भी रेजोल्यूशन पास होना इज़ इम्पॉर्टेंट। और अगर गवर्नर चाहे तो वो किसी भी टाइम पे बिफोर आफ्टर, ये जो 6 वीक्स का टाइम पीरियड हम इसको कंसीडर ही नहीं करते हैं, जो गवर्नर है वो किसी भी टाइम पे विड्रॉ कर सकता है अपने खुद के ऑर्डिनेंस को। नेक्स्ट आता है लेजिस्लेटिव प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ बिल, कि लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या है, हम बिल को जब एक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो प्रोसेस क्या है। सिंपल प्रोसेस है कि पहली रीडिंग हुई, फर्स्ट हाउस, यहाँ हम लेके चलते हैं, अभी मैंने बताया जैसे विधानसभा ले लो या फिर विधान परिषद, विधानसभा से आया तो विधान परिषद पे जाएगा, विधान परिषद से आया तो विधानसभा के पास जाएगा, देन गवर्नर। दिस इज़ वन केस उन 6 स्टेट्स के लिए जहाँ ड्यूअल लेजिस्लेचर्स के बॉडीज़ हैं, और अगर सिर्फ विधानसभा है, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, तो ये सेकंड वाला अप्लाई करेगा। अब इन्हीं पे रखी ये प्रोसेस देखो, बिल इंट्रोड्यूस हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल जिसको हम कहते हैं फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग उसी हाउस में हुई, दैट इज़ जहाँ पे डिबेट्स होंगी, जो भी उनकी लेजिस्लेचर की कमिटीज़ है उनका रिव्यू होगा, सेकेंड रीडिंग में जो भी चेंजेस है करे जाएंगे, देन थर्ड रीडिंग होगी जहाँ पे फाइनल फ्लोर वोट होगा। फ्लोर वोट मतलब जहाँ पे फाइनल वोटिंग हो रही है, दैट वेदर वी आर पासिंग दिस बिल और नॉट, जहाँ पे हम मेजॉरिटी कैलकुलेट करेंगे, और अगर यहाँ पे मेजॉरिटी मिल जाती है तो फिर ये चला जाएगा गवर्नर के पास। ये सिंपल प्रोसीजर है जो यहाँ पे अप्लाई करेगा। बट अगर 2 हाउसेज हैं, अगर 2 हाउसेज होते हैं तो यहाँ से पास होके अगले हाउस पे जाएगा, और यहाँ से भी पास होके फिर गवर्नर के पास जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि हमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए या फिर स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। कितने टाइप्स के बिल्स होते हैं, सेम जो हम पार्लियामेंट में पढ़ के आए हैं, सेम उतने ही टाइप के बिल्स हमारे स्टेट लेजिस्लेचर में भी होंगे। ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हो सकता है, अगर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, 2 हाउसेज हैं तो किसी भी हाउस में हो सकता है। काउंसिल के पास पावर है कि वो डिसएग्री भी कर सकती है, बट द असेंबलीज विल प्रिवेल्स आफ्टर अ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, दैट इज आर्टिकल 197 में बोलता है दैट इन केस ऑर्डिनरी बिल है, हम मनी बिल के अलावा किसी दूसरे बिल्स पे बात करें तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं ऑन द पावर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल अदर दैन अगर वो मनी बिल है। अगर मनी बिल रिजेक्ट कर दिया है काउंसिल ने, या 3 महीने से ज़्यादा उसको रोक के रखा और उस पर पास नहीं किया, ना ही कोई रिकमेंडेशन की, या फिर जो बिल है दैट इज़ पास्ड बाय काउंसिल विद द अमेंडमेंट्स टू विच लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ नॉट अग्रीइंग, तो इस केस में क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का जो उसके थ्रू जो पास किया हुआ है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास चला जाता है। एंड नाउ यहाँ पे इट विल बी, यहाँ पे देखो 3 महीने का टाइम पीरियड पहली बार में दिया है, दैट 3 मंथ्स हमने दे दिया कि आप चेक कर लो दैट वेदर यू आर ओके विद इट और नॉट, या अगर कोई अमेंडमेंट्स है तो वो बता दो। दोबारा से असेंबली के पास वो बिल जाएगा, अगर असेंबली से निकला हुआ है काउंसिल के पास गया, काउंसिल ने चेंजेस बताए और असेंबली को वापस से भेज दिया। अब असेंबली चाहे तो चेंजेस करे, ना चाहे तो ना करे, अगेन वो बिल सेकेंड टाइम जाएगा असेंबली से काउंसिल के पास। अब ये बिल रिजेक्ट भी हो सकता है, ये बिल इलैप्स भी हो सकता है, बट ये जो टाइम पीरियड है 1 मंथ से ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि बिल अमेंडमेंट के साथ अगर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं भी मान रही है बट काउंसिल अमेंडमेंट्स को भेजा है, तो इन दिस केस ये मान लिया जाएगा कि असेंबली, दैट मीन्स कि ये जो
दोनों हाउसेज हैं, इसमें जो नेक्स्ट वाला हाउस है दैट मीन्स काउंसिल, उसकी तरफ से मान लिया जाएगा कि ये अग्री कर रहे हैं जो भी बिल पास किया गया है। और दिस ऑडिट, ये जो भी प्रोसेस है, दिट शुड नॉट बी अप्लाइड फॉर मनी बिल। ये मनी बिल का कॉन्सेप्ट नहीं है, मनी बिल के अलावा जितने भी बिल्स हैं उन पे अप्लाई होगा। नेक्स्ट आता है 199, दैट इज़ रिगार्डिंग मनी बिल, जो एक्सप्लेन करता है मनी बिल क्या है। और 198 बताता है कि मनी बिल को पास करने का प्रोसीजर क्या होगा। मनी बिल सेम जो ए से लेके जी तक इन दिस 199 क्लॉज ए से जी है, गो रीड वंस, जो पार्लियामेंट के प्रोविजंस थे, सेम ए टू जी यहाँ पे भी वही प्रोविजंस है कि कौन कौन से बिल मनी बिल्स होंगे। जैसे कि अगर कोई रेगुलेशन या ऑल्ट्रेशन, अबॉलिशन, इम्पोजिशन ऑफ अगर कोई टैक्स होता है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ दैट स्टेट इज़ एनी बोरोइंग सम मनी और गिविंग सम गारंटी टू दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, या फिर कंटीजेंसी फंड या कॉन्सोलिडेटेड फंड से कुछ मनी का विड्रॉल हो रहा है, उसमें कुछ मनी का एप्रोप्रिएशन हो रहा है, कहीं पे कुछ एक्सपेंडिचर हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है एक्सपेंडिचर अमाउंट, या फिर किसी अमाउंट का रिसीट हो रहा है फ्रॉम एनी पब्लिक अकाउंट, या एनी मैटर्स रिलेटेड टू दीज थिंग्स, तो हम उनको बोलेंगे मनी बिल है। नाउ मनी बिल डिसाइड कौन करता है, मनी बिल है या नहीं है, दिस इज़ डिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो सर्टिफिकेट है दैट इज़ गिवन बाय स्पीकर, और इसके बाद गवर्नर इज़ द पर्सन हु विल बी सर्टिफाइंग दैट ये जो स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ने जिसको बोला है दैट ये मनी बिल है, उस पर जो सर्टिफिकेशन है वो करेगा गवर्नर। नेक्स्ट आता है मनी बिल को पास करने का प्रोसीजर। मनी बिल जब भी पास होगा वो विधानसभा से ही पास होगा, और फिर विधान परिषद पे आएगा, अगर विधान परिषद है तो, नहीं है तो विधानसभा से इनिशिएट होकर सीधे गवर्नर के पास चला जाएगा। पासिंग का जो भी प्रोसीजर है वो सेम, यहाँ पे जो जर्नी लिखी हुई है सेम वही जर्नी होती है। इट डील्स विथ, ये जो विधानसभा है यहीं से इंट्रोड्यूस हुआ है। काउंसिल के पास से 14 डेज़ हैं कि वो रिकमेंडेशंस अगर उसको देनी है तो दे दे। अगर रिकमेंडेशंस नहीं दी विद इन 14 डेज़ मान लिया जाएगा कि वो जो बिल है वो विधान परिषद ने एक्सेप्ट कर लिया है। अगर मान लो 14 डेज़ में इन्होंने रिकमेंडेशंस दे भी दी विद इन 14 डेज़, सो नाउ इट्स द कॉल ऑफ विधानसभा कि वो रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करे या फिर ना करे। अगर एक्सेप्ट कर लिया अच्छी बात है, नहीं किया फिर जब दोबारा से ये पास कर भेजेगा पास कर कि विधान परिषद के पास, नाउ दिस हाउस हैज़ टू गिव द असेंट और इसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं फाइनेंशियल बिल्स। फाइनेंशियल बिल्स जिसमें हम किसी भी तरह की फ़ीस, रिसीट या फिर कोई भी काइंड ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व है, फाइन्स इन्वॉल्व है अपार्ट फ्रॉम मनी बिल, वो हो जाएंगे हमारे फाइनेंशियल बिल्स। ये किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस करे जा सकते हैं, बट बिफोर इंट्रोडक्शन प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर इज़ इम्पॉर्टेंट। तो पहले से हमें गवर्नर से पूछना पड़ेगा दैट वेदर वी आर गोइंग टू पास दिस बिल, ये फाइनेंशियल बिल है। गवर्नर एसेंट देगा कि ठीक है नाउ यू कैन इंट्रोड्यूस, तो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस करके सेम यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आता है अमेंडमेंट बिल। अमेंडमेंट बिल का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। वैसे तो यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं होगा, बट ये जो चीज़ें हैं ये अप्लाई होती हैं 368 का जो थर्ड पॉइंट था, दैट मीन्स जहाँ पे हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट में, बट हमें स्टेट्स का रैटिफिकेशन चाहिए। तो रैटिफिकेशन कैसे होता है, उस स्टेट का जो लेजिस्लेचर है, उस स्टेट के लेजिस्लेचर में हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर शुड बी, मोर देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर शुड बी लाइक towards or you can say for the whatever the changes which are going to happen। तो स्टेट में हम पता कैसे करते हैं, जितने भी ओवरऑल मेंबर्स हैं उन हाफ से ज़्यादा अग्री होने चाहिए, तो दैट इज़ स्टेट रैटिफिकेशन। प्राइवेट मेंबर बिल इज़ एनी मेंबर जो इंट्रोड्यूस करता है किसी भी बिल को बट ही इज़ नॉट द मिनिस्टर। ये बहुत कम यूज़ होता है, बट सेम जैसे बाकी बिल्स पास होते हैं ऐसे प्राइवेट मेंबर बिल भी पास हो जाएगा। नेक्स्ट इज पावर्स एंड फंक्शंस एंड फाइनेंशियल कंट्रोल्स। पावर्स, फंक्शंस और फाइनेंशियल कंट्रोल किस तरह के होंगे। लेजिस्लेटिव पावर स्टेट की सिर्फ लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3 तक जाएगी, लिस्ट 1 में इंटरफेयर नहीं करेगी बिकॉज वो प्योरली पार्लियामेंट का पार्ट है, राइट। सो लिस्ट 2 के जितने सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, लैंड, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट टैक्सेस, ये इन सब पे लॉज बनाने का काम हमारे स्टेट लेजिस्लेचर करता है। कॉन्करेंट में ऐसी है जहाँ पे ओवरलैपिंग है, दोनों स्टेट और पार्लियामेंट दोनों ही लॉज बना सकते हैं, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, क्रिमिनल लॉज। तो यहाँ पे
पार्लियामेंट का जो लेजिस्लेशन है वो भी अलाउड है। तो देयर आर चांसेस कि जहाँ पे यूनियन और स्टेट लॉज कभी कभार कॉन्फ्लिक्ट में भी चले जाएंगे। अगर कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं तो रिपग्नेंसी का डॉक्ट्रिन लगाया जाएगा, एंड रिपग्नेंसी इज मेंशन्ड अंडर 254, जहाँ पे यूनियन लॉ विल प्रिवेल ओवर स्टेट लॉज। देर आर सर्टेन एग्जीक्यूटिव कंट्रोल्स ऑल्सो, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल चलता है लेजिस्लेचर पे वेयर देर इज़ अ क्वेश्चन आर। ये एक प्रोसीजरल फॉर्म है जिसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, जहाँ पे मेंबर्स क्वेश्चंस करते हैं मिनिस्टर्स से। दैट मीन्स कि जो लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं, अब नाउ सी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड सीएम आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द हाउसेज, टूवर्ड्स द लेजिस्लेचर। तो वहाँ पे उनको आंसर करना पड़ेगा इफ़ देर इज़ एनी क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चंस कैसे भी हो सकते हैं, ओरल आंसर दैट मीन्स स्टार्ड हो सकते हैं, अनस्टार्ड मीन्स रिटन आंसर्स भी मांगे जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है 0R। 0R में तुरंत जो भी ऐसे कोई सिचुएशन है इमरजेंसी, जिन मैटर्स पे हमें तुरंत ही फोकस करना है विदाउट एनी प्रायर नोटिस, हम 0R में उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ये इमीडिएटली जैसे ही क्वेश्चन आर खत्म होता है वैसे ही 0R स्टार्ट हो जाता है। एडजर्नमेंट मोशन मतलब कि कॉलिंग अटेंशन इनटू अ डेफिनेट मैटर, और वो जो डेफिनेट मैटर है शुड बी ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। कुछ ऐसा मैटर है जिस पे तुरंत हमें ज़रूरत है इम्पॉर्टेंट किसी भी बिल को या किसी भी एक्ट को पास करने की, कोई एक्शन होना चाहिए, एंड इट अमाउंट्स टू द सेंचर ऑफ द गवर्नमेंट इफ पास। तो अगर पास कर चुके हैं सेंचर तो उसकी रिगार्डिंग होता है, तुरंत एडजर्नमेंट का कॉल होता है। नो कॉन्फिडेंस मतलब कि यहाँ पे जो अपोजिशन है वो नो कॉन्फिडेंस चलाता है, दैट अब वो ये कहता है कि जो सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इनका यहाँ कॉन्फिडेंस नहीं रह गया है। उसकी ऑन फ्लोर वोटिंग होती है। अगर वोटिंग में पता चल जाता है कि येस मेजॉरिटी, इसकी मेजॉरिटी का ये मानना है कि अब इनकी गवर्नमेंट का कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं रह गया है, क्योंकि सिनेरियो चेंज होते हैं, गवर्नमेंट बनी थी तब था, अब नहीं है। सो दैट मीन्स अगर सिनेरियो चेंज हो गया और ये चीज़ प्रूव हो गई बाय मेजॉरिटी, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कलेक्टिवली रिज़ाइन करना पड़ता है। और कलेक्टिवली रिज़ाइन मतलब दे आर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द विधानसभा। कट मोशंस जब बेसिकली बजट सेशन में होता है। बजट सेशन में कट मोशंस का मेनली मतलब है कि जो भी आपने ग्रांट्स मांगे, जो भी आपने डिमांड करी है उसको रिड्यूस करो। पॉलिसी कट, इकोनॉमिक कट, टोकन कट आर द एग्जाम्पल ऑफ कट मोशंस। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल पावर्स एंड बजट प्रोसेस। बजट प्रोसेस 202 आर्टिकल बताता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दैट मीन्स कि बजट पास हुआ है, गवर्नर इस स्टेट बजट को प्रेजेंट करता है और ये विधानसभा को प्रेजेंट करेगा। वैसे तो दोनों हाउसेस में कर सकता है, दोनों हाउसेस के सामने किया जाता है, जहाँ पे हमारा टोटल रिसीट्स और एक्सपेंडिचर कि कमिंग ईयर में हम क्या क्या खर्चा करने वाले हैं और क्या क्या हमें चीज़ें करनी है एज़ पर टू अमाउंट, तो वो चीज़ें बजट में मेंशन्ड होती हैं। वोट ऑन अकाउंट का मतलब ये है कि पहले से ही कुछ अमाउंट एडवांस में दे दिया जाता है गवर्नमेंट को, कुछ ग्रांट्स दे दिए जाते हैं जो उसी ईयर के पार्ट है। बाद में वो जो बजट में, जैसे मान लो कि 10,000 करोड़ का एक सेट था जिसमें हमें एक पर्टिकुलर एरिया में ये पैसा देना था, बट हमने पहले ही 2,000 करोड़ विदड्रॉ कर लिए क्योंकि हम कंटिन्यूटी में करना है। बिल बाद में आएगा, जो एक्ट है, जो हमारा बजट है, अप्रोप्रिएशन बिल हम बाद में लगाएंगे, बट हमें इमीडिएट एडवांस चाहिए क्योंकि हमें अपना मंथली प्रोसीजर भी एज इट इज़ कंटिन्यू करना है टू कंटिन्यू द कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसको इंश्योर करने के लिए एडवांस में जो पैसे लेते हैं उनको हम वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। ऑफकोर्स ये बाद में एडजस्ट हो जाते हैं। तो जब तक फुल बजट, फाइनल बजट अप्रूव हो रहा है, एडवांस फंड्स ले लिए, उनको वोट ऑन अकाउंट बोलेंगे। अप्रोप्रिएशन बिल मतलब बजट में जितना कुछ भी पास्ड है वो बजट में पास्ड है, बट अगर आपको उस मनी को विड्रॉ करवाना है, विड्रॉ कहाँ से होगा? फ्रॉम द अकाउंट कॉल्ड एज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। तो अगर उसको विड्रॉ कराना है तो उसके लिए एक पैसेज है, एक प्रोसेस है विच इज़ कॉल्ड एज एप्रोप्रिएशन बिल, आर्टिकल 204। 204 में उस जो ग्रांट्स हैं या जो भी एक्सपेंडिचर है, जो भी आपको चाहिए होगा उस पर्टिकुलर चीज़ में, वो उस ग्रांट को आप मांग सकते हैं थ्रू अ प्रोसेस। इट शुड बी पास्ड बाय विधानसभा। अब यहाँ पे जो अमाउंट, जो ग्रांट है, उसको हम रिडक्शन या उसका इंक्रीमेंट कुछ भी नहीं करते हैं। जो भी चीज़ें हमें ऑलरेडी बजट में डिसाइडेड है, बस उसी मनी को विड्रॉ करना है। विदाउट एप्रोप्रिएशन बिल नो मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट होता क्या है? ऐसे समझो कि एक अकाउंट है जहाँ पे सारे रेवेन्यूज़ रिसीव हो रहे हैं, लोन्स रेज करे जा रहे हैं, रीपेमेंट्स भी हो रही हैं। दैट मीन्स क्रेडिटिंग एंड डेबिटिंग बोथ इज हैपनिंग हियर। तो यहाँ से जितना भी खर्चा हो रहा है वो भी इधर से ही जा रहा है, और ये जो खर्चा निकलेगा ये एप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू जाएगा।
कुछ चीज़ों पे वोटिंग नहीं होती है, जैसे यहाँ पे था विच मस्ट बी पास बाय विधानसभा, तो वो वोटिंग वहीं पे करेंगे जिनमें हम जिनके जो अमाउंट है उस पर हम कुछ भी डिस्कशन कर सकते हैं। जो चीज़ें एज इट इज़ सेट हैं, जैसे नॉन वोटेबल, जो नॉन वोटेबल हैं जिनको हम चेंज ही नहीं कर सकते, तो उन जैसे सैलरीज हो गई, सैलरीज को वी कैन नॉट चेंज, वो तो फिक्स है ना कि कितनी सैलरीज कितने एमोल्यूमेंट्स जाने हैं, तो उस पर कोई भी किसी भी तरह की वोटिंग कंडक्ट नहीं कराई जाएगी। इसके अलावा 205 यू कैन रीड, जिसमें सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स हैं। ये हम ऑलरेडी पार्लियामेंट वाले भी क्लॉज में, पार्लियामेंट वाली वीडियो में इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं कि 205 में सप्लीमेंट्री क्या होता है, एडिशनल क्या होता है। सप्लीमेंट्री मतलब एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, जो बजट में पास था वो ख़त्म हो चुका है, एक्स्ट्रा चाहिए। एडिशनल मतलब कोई नई स्कीम आ गई, अब उस टाइम नहीं पता था जब बजट पास हो रहा था, अब नई स्कीम के लिए भी हमें वी वांट सम मोर अमाउंट, तो दैट इज़ एडिशनल। एक्सेस का मतलब होता है कि और जितना सोचा था उससे ज़्यादा ऑलरेडी खर्च हो चुका है, तो नाउ वी वांट द मनी फ्रॉम द अकाउंट। सो इस हिसाब से ये पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं कमिटीज़, प्रिविलेजेस, एंटी डिफेक्शन एंड रिफॉर्म्स। कमिटीज़ का काम है स्टेट लेजिस्लेचर में बिल्कुल सेम वैसी कमिटीज़ होती हैं जैसे कि पार्लियामेंट में होंगी, और इनका काम क्या होगा, डिटेल्ड स्क्रूटनी ऑफ लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, प्रॉपरली चेक करती है कि जो लॉ बन रहा है उसकी स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है, टू कीप अ चेक ऑन कि जो तुमने काम किया है वो सही है या नहीं है। एंड एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी मतलब एग्जीक्यूटिव के भी एक्शंस पे चेक लग रहा है दैट वेदर यू हैव डन द प्रॉपर थिंग और नॉट। तो काफ़ी तरह की कमिटीज़ होती हैं, जिसमें पहली हो गई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम है दैट इट विल एग्जामिन द एनुअल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ CAG। जो भी CAG के थ्रू जो ऑडिट रिपोर्ट आएगी कंसर्निंग द स्टेट फाइनेंसेस, क्योंकि हम यहाँ पे स्टेट की बात करते हैं, स्टेट की का ही कमेटी है, स्टेट लेजिस्लेचर की कमेटी है, तो अपने खुद के स्टेट का ही इसका ओवरऑल व्यू होगा। यहाँ पे जो पैसे खर्च हो रहे हैं दैट विल बी चेक्ड बाय दिस कमिटी, जो अपने बजट में या जो आपने पैसे ले रखे थे कंसोलिडेटेड फंड में वेदर दे आर यूज्ड और नॉट। एस्टिमेट्स कमिटी दैट मीन्स एग्जामिन्स द बजट एस्टिमेट एंड सजेस्ट इकोनॉमी इम्प्रूवमेंट इन द पॉलिसीज एंड ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ एस्टिमेट्स। एस्टिमेट कमेटी मतलब एक तरह का प्रिजम्पशन है या अजम्पशन कह लो कि हम आगे चल के इस पर्टिकुलर चीज़ में कितने हम खर्चा करने वाले हैं, कितना एक्सपेंडिचर होने वाला है, तो उसका इंक्रीमेंट, डिक्रीजन या कह लो कि रिडक्शन ऑफ अमाउंट, ये सारा कुछ चेक किया जाता है। ये काम होगा एस्टिमेट कमेटी का। नेक्स्ट आता है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, जहाँ पे रिपोर्ट्स और अकाउंट ऑफ स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स चेक करी जाएंगी वेदर दे आर फंक्शनिंग इन अकॉर्डेंस विद साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स और नॉट। जहाँ पे PSUs के ऊपर हम चेक लगाते हैं, PSUs की जो रिपोर्ट्स हैं उसको चेक किया जाता है दैट वेदर दे आर, मतलब सिर्फ ऑन पेपर चीज़ें हैं या इन रियलिटी जो भी बोला गया है, मैनिफेस्ट किया गया है, वो चीज़ें हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं। नेक्स्ट और लास्ट आता है सेलेक्ट ऑफर जॉइंट कमिटी। सेलेक्ट कमिटीज़ का मतलब है कि अगर किसी स्पेसिफिक बिल के लिए कोई कमिटी बनाई गई है उसको बोलेंगे सेलेक्ट कमिटी, जो कि एग्जामिन करेगी स्पेसिफिक बिल को जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है इन डिटेल, और उसके ऊपर पब्लिक ओपिनियन भी लेगी। एंड जॉइंट कमिटीज़ का मतलब होता है जब दोनों हाउस, अगर 2 हाउसेज हैं तो दोनों हाउसेज के मेंबर मिलके एक कमेटी बनाते हैं, और वो इन्हीं बिल्स से स्पेसिफिक बिल के लिए कमेटी बनाया है उन्होंने, टू कीप अ चेक ऑन एंड टू सजेस्ट द अमेंडमेंट्स बिफोर द बिल इज पुट टू वोट इन द हाउस। तो पहले ही से वो चेक लगा लेंगे, जो भी चेंजेस हैं वो कर लेंगे, जो उनको ठीक नहीं लग रहा वो उसको सजेस्ट कर देंगे, तब जाके ये बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स, कि अब यहाँ पे भी MLAs हैं, MLCs हैं, इनको हम क्या क्या प्रिविलेज देंगे। सो सबसे पहली प्रिविलेज होती है कि ये दे आर हैविंग फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द हाउस, इनको कोर्ट प्रोसीडिंग्स में नहीं बुलाया जाएगा रिगार्डिंग वट एवर दे हैव सेड और वोटेड इन द हाउस। प्लस कि इनके पास एक ये भी पावर है कि ये किसी भी मेंबर को पनिश कर सकते हैं, या आउटसाइडर ने अगर कोई ब्रीच किया है फॉर द कंटेम्प्ट, तो ये एक तरह का प्रिविलेज है दैट दे कैन पनिश देम। नेक्स्ट आता है एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन दैट इज 10th शेड्यूल। अच्छा, देर इज अ इम्पॉर्टेंट नोट ऑल्सो हियर दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच इन लेजिस्लेचर इज सब्जेक्ट टू द रूल्स एंड स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ द हाउस, नॉट टू एनी अदर लॉ। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब सब्जेक्ट टू स्टैंडिंग ऑर्डर, मतलब कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो कि उस हाउस ने खुद से पास कर रखे होंगे, उसी अकॉर्डेंस में हम ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोवाइड करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज एंटी डिफेक्शन।
Anti-defection, this was added by 52nd Constitutional Amendment Act through 10th schedule. 10th schedule is completely of anti-defection. Always remember tiers of old PM. This is 10th schedule. 1, 2, 3, 4, 5, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th and 12th. These are 12 schedules. ये शॉर्ट फॉर्म है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम. इसमें D इज़ फॉर डिफेक्शन. डिफेक्शन का मतलब है जब कोई मेंबर अपनी मेंबरशिप को वॉलेंटरी गिव अप कर देता है फ्रॉम एनी पार्टी. अब वो मेंबर है, दैट मीन्स वो लेजिस्लेटिव जो स्टेट का लेजिस्लेचर है उसमें सीट एक्वायर कर चुका है. तो उसने जो भी जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से वो था उसकी मेंबरशिप को उसने गिव अप कर दिया, या फिर उसने उस जगह वोट किया जहाँ पे पार्टी डायरेक्शन ने वोट करने को मना किया था या परमिशन नहीं दी थी. विदाउट परमिशन कहीं पे वोट कर दिया जो कि कॉन्ट्रेरी है उस पार्टी के. नेक्स्ट आता है कोई नॉमिनेटेड मेंबर जिसको नॉमिनेट किया गया था और उसने आफ्टर 6 मंथ्स क्या किया, कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली. तो नॉमिनेशन के थ्रू आए हो तो वाई यू आर ज्वाइनिंग द पॉलिटिकल पार्टी. इन 3 चीज़ों पे उस पर्सन के ऊपर मानना जा सकता है कि उसने डिफेक्शन किया है. और इसी चीज़ को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया है विच इज़ कॉल्ड एज 10th शेड्यूल. 10th शेड्यूल के अंदर होगा क्या कि ये जो स्पीकर है, स्पीकर इन विधानसभा यानी असेंबली, चेयरमैन इन योर काउंसिल दैट इज़ विधान परिषद, ये डिसाइड करेंगे जो भी डिसक्वालिफिकेशन पेटिशन आती है वेदर दे आर एक्सेप्टिंग इट और दे आर रिजेक्टिंग इट. जो जितने भी मर्जर्स होते हैं, मर्जर्स मतलब जहाँ पे 2/3 ऑफ जो पार्टी है 2/3 मेंबर्स अगर जा रहे हैं किसी और पॉलिटिकल पार्टी में मिक्स हो रहे हैं जाके, तो पहले इनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता था. बट जैसे ही 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 आया उसने इस चीज़ को थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर दिया जिससे कि ये चीज़ें जल्दी जल्दी नहीं हो. राइट. तो अ काइंड ऑफ डिफेक्शन को रोकने के लिए बना रहे हैं एंटी डिफेक्शन लॉज. जहाँ पे हमें ज़्यादा और रिफॉर्म करने की ज़रूरत है वो चीज़ें हैं कि बहुत कम सेशंस होते हैं, बहुत सारे जो लेजिस्लेचर है वहाँ पे दे आर मीटिंग फॉर वेरी फ्यू डेज़ इन अ ईयर. सो वहाँ पे जब बहुत कम डेज़ पे मिलेंगे तो अकाउंटेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, ओवरसाइट कम हो जाएगी. इन दैट केस दे शुड इंक्रीज़ द मिनिमम नंबर ऑफ डेज़. तो ये रिफॉर्म्स बनने चाहिए कि अपने सिटिंग डेज़ को इंक्रीज़ करें जिससे कि और ज़्यादा डिबेट्स और ज़्यादा टॉक्स हो सके, जिससे नई चीज़ें, नए मॉडर्न लॉज, मॉडर्न आइडियाज़ निकल के आए और नए बिल, मॉडर्नाइज्ड बिल्स एक्ट में कन्वर्ट हो जाएं. क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज़ बोली है दैट ऐसे लोग जिनका कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट या क्रिमिनल केसेस हैं उनके ऊपर उनको डिस्पोज करो, और ऐसे लोगों को दे शुड नॉट बी लाइक उनके ऊपर जो ट्रायल्स चल रहे हैं उनको फटाफट से ख़त्म करना है. और इन केस अगर कोई ऐसा क्रिमिनल बैकग्राउंड का कोई पर्सन है तो ही शुड नॉट बी अलाउड टू कि वो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर आ जाए या अपनी सीट एक्वायर कर ले. नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथनिंग कमिटीज़. जितने भी अभी हमने ऊपर कमिटीज़ पढ़ी हैं इनको और ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, और जो बहुत कम एक्टिव हैं उनको हमें और स्ट्रेंथन करना चाहिए बाय प्रोवाइडिंग देम द अपॉर्चुनिटी टू टेक पार्ट इन दैट लेजिस्लेटिव प्रोसीजर. इससे होगा क्या, देखो स्क्रूटनी से मतलब क्या, वी आर नॉट टेकिंग आउट कि हम हर चीज़ में कमी निकाल रहे हैं, बट स्क्रूटनी मीन्स कि हम उन पॉइंटर्स पे बात करते हैं जो हिडन गैप्स रह गए. हो सकता है वो हिडन गैप्स जो बिल प्रपोज कर रहे थे उन्हें नहीं मिले, बट कमेटी ने जब इस चीज़ को रिव्यू किया, रीड किया, स्क्रूटनी करी तो कुछ ऐसे हिडन गैप्स निकल के आए, लूप होल्स निकल के आए, जिस पे हम उन लूप होल्स पे बात करके उस पर्टिकुलर लॉ को और अच्छा कर सकते हैं. इन दैट केस लेजिस्लेटिव क्वालिटी और एग्जीक्यूटिव ओवरसाइट और ज़्यादा बढ़ जाती है. लास्ट आते हैं इन द कंपैरिजन चैलेंजेस एंड रिविजन क्विज पे, वेयर वी हैव लाइक कंपेयर्ड लेजिस्लेचर एंड यूनियन पार्लियामेंट. तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पार्ट 4 168 से 212 डिफाइंड है, पार्ट 5 79 से 122 इज डिफाइंड. कॉम्पोजिशन गवर्नर, विधानसभा एंड विधान परिषद ओनली इन 6 स्टेट्स, बट यहाँ पे प्रेसिडेंट है, लोकसभा विद राज्यसभा है. लोअर हाउस का टर्म 5 ईयर्स है, यहाँ पे भी 5 ईयर्स है. विधान परिषद इज अ परमानेंट बट नॉट इन ऑल स्टेट्स. राज्यसभा इज परमानेंट और ये सिर्फ एक ही है. राइट. स्पीकर ऑफ द विधानसभा इज द पर्सन हु इज मनी बिल सर्टिफाइंग अथॉरिटी, एंड सेम गोज फॉर यूनियन पार्लियामेंट की लोकसभा का स्पीकर बताता है कि कौन सा बिल मनी बिल है. मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग
इन स्टेट लेजिस्लेचर का जो लोअर हाउस है दैट इज़ 25 ईयर्स, सेम इज़ फॉर लोकसभा, एंड फॉर विधान परिषद इट इज़ 30 ईयर्स, सेम फॉर राज्यसभा। स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट यानी सेकेंड और थर्ड लिस्ट पे लॉज बना सकता है स्टेट लेजिस्लेचर, फर्स्ट और थर्ड पे बनता है पार्लियामेंट प्लस रेजिड्यूरी पावर्स जो इन तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है या जो रह गई हैं। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर गवर्नर के पास है 213 में, यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास है 123 में। सो आई होप ये ऑलमोस्ट जो दो लेजिस्लेचर्स हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे फ्रॉम दीज पर्टिकुलर पॉइंटर्स। नेक्स्ट आते हैं चैलेंजेस क्या है। डिक्लाइनिंग सिटिंग डेज यानी 30 दिन से भी कम मिल रहे हैं एक साल में, तो इस चीज़ को इन्हें और इंक्रीज़ करना चाहिए सो दैट अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज़ हो और ज़्यादा क्वालिटी निकल के आए ऑफ द लेजिस्लेशंस विच आर पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। नेक्स्ट आते हैं गवर्नर गवर्नमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर गवर्नर इज़ इन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द गवर्नमेंट विच इज़ राइट नाउ इन द पावर, तो उस केस में भी कई बार कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं। गवर्नर जो बिल्स हैं उसको एसेंट नहीं देते या डीले करते हैं, तो इस तरह की चीज़ों की वजह से फेडरल बैलेंस डिस्टर्ब होता है। आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है, प्रोविजंस हैं, ये लैग बिहाइंड करते हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनको बीच में नहीं आने देना चाहिए फॉर मेंटेनिंग द प्रॉपर बैलेंस। वीक कमिटी सिस्टम मतलब कि यहाँ जो लेजिस्लेचर कमिटी है इसमें दे आर नॉट हैविंग प्रॉपर ट्रेन स्टाफ, रिसर्च सपोर्ट कम होता है, फंक्शनिंग कंसिस्टेंट नहीं हो पाती, इसीलिए इनका जो पार्टिसिपेशन है वो उतना एक्टिव नहीं होता। बट इस चीज़ को अगर एक्टिव किया जाएगा तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ द लॉज पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर। फ्लो डिस्ट्रप्शंस मीन्स फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट्स और डिस्ट्रप्शंस होते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि जहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा अगर डिबेट बहुत ज़्यादा लोअर द बेल्ट भी हो जाती हैं चीज़ें। अगर इतना ज़्यादा हो जाएगा तो एडजर्नमेंट हो जाएगा, सेशन ख़त्म कर दिया जाएगा, सेशन में पूरी जो डिबेट चल रही थी वो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी, आपस में ही इतना ज़्यादा केओस क्रिएट हो जाएगा। सो फ्लो डिस्ट्रक्शंस को कम करना चाहिए टू मेक दीज debates and discussions to be more like developing in nature, growing in nature. नेक्स्ट आता है, इसके लिए आई वुड सजेस्ट यू SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस एक बार रेफ़र करो टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वाज द फैक्ट्स ऑफ दिस केसेस, गवर्नर की क्या पावर्स हैं और प्रेसिडेंट की क्या पावर्स हैं, टू अंडरस्टैंड कि ये जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी में जो फेल हो गई है और एमरजेंसी लगा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या से था इन दिस पर्टिकुलर थिंग। तो गो ऑन रीड SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। Now coming on certain MCQs, of course I answered दिया but don't see the answers, just focus on the questions कि कैसे questions पूछे जा सकते हैं। पहला था डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे कि कौन से आर्टिकल में विधानसभा का जो कॉम्पोजिशन है वो स्पेसिफाइड है। सिंपल है, आर्टिकल 170 मैक्सिमम 500 मिनिमम 60 डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स। क्वेश्चन आ सकता है हाउ मेनी स्टेट्स करेंटली हैव बाई कैमरल लेजिस्लेचर। हो सकता है क्वेश्चन घुमाकर भी पूछे कि ऑड वन आउट निकालो या सीरीज़ में चेक करो दैट कौन से 6 स्टेट्स का जो ऑप्शन है वो सही है। सो इस तरह से क्वेश्चन आता है विच आउट ऑफ विच आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका आर द 6 स्टेट्स जिनके पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर प्रेजेंट है। मैक्सिमम पीरियड जो जहाँ पे काउंसिल डिले कर सकती है मनी बिल को दैट इज़ 14 डेज़। 14 डेज़ के बाद वो डिले नहीं कर पाएगी, मान लिया जाएगा कि उसने उस चीज़ को पास कर दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन में एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से शेड्यूल डील करता है, दैट इज 10th शेड्यूल। इट हैज़ बीन इंसर्टेड बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। गवर्नर कितनों को नॉमिनेट करता है, 1/6 मेंबर्स, जिसमें दे आर हैविंग स्पेशल नॉलेज ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट और सोशल सर्विस। टू अंडरस्टैंड दिस गवर्नमेंट स्टेट डिस्प्यूट्स आई वुड रिकमेंड नवम रेबिया, किहोटो होलन एंड रीसेंट डेवलपमेंट्स टू अंडरस्टैंड कि फ़िलहाल में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। सो दिस वॉज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ आर स्टेट्स। आई होप दिस video helped you understand all the important concepts clearly. If you found this video useful, then don't forget to like, share and subscribe to the channel for more videos on Indian polity and competitive exam preparation. Thank you for watching and see you in the next video. Keep learning, keep growing and keep preparing smartly.